हेलो फूक्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं आकाशिक रीडिंग के बारे में विद नेहा मैम, हु इज द फाउंडर ऑफ मैजिकल हीलिंग्स। तो इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आकाशिक रीडिंग, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है, और टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी वगैरह, इन सब से वो कैसे डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं कि मैम, व्हाट इज आकाशिक रीडिंग। Okay. Hi, Akash. Uh, Akashic reading, as its name suggests, okay, this is like it is referring to Akash, okay, and we all know that we are made up of five elements. So here we refer as like Akash is the main element, okay, main element, and Akashic reading, Akash basically keeps a record of your name is also Akash, not like you keep the record of all souls journey, but in the Akashic reading, the Akash element is something which has been dedicated by the universe to keep all the records which a soul has experienced in all in all its life. So yesterday we were talking about the past life. Also, we can access details of anybody's past life through Akashic reading. Okay, so it is something like you can imagine it as a huge library. Okay, and every one life of yours or certain experiences are kept there in the form of books, in the form of records, in the form of like government files. So fortunately in Akash it is not being digitalized yet. Okay, so this is in the form of, you can imagine it is in form of books. So we, as a healer, as an Akashic reading, travel there and get that specific information through these records. Okay, what the universe wants to convey to you. So that's the whole about Akashic reading. I mean, it's a very vast topic to understand it, to know it, to experience it. But precisely, this is Akashic reading. तो इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या है, व्हाई शुड आई इवन ऑप्ट फॉर आकाशिक रीडिंग। See, Akashic reading has infinite benefits, first of all. Who truly have faith in this, who truly believes into it. Why? Because you get a very deep information by accessing the Akashic records. Okay. कुछ सर्टेन एक्सपीरियंसेस एग्जांपल्स देकर मैं आपको बताती हूँ कि लेट्स से किसी की लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो आकाशिक रिकॉर्ड से ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उस वाई का आंसर मिलेगा, दैट वाई इट इज हैपनिंग, राइट। अब ये आपके किसी पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से है, या आपके किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से है, या किसी और रीजन की वजह से है, दैट इंफॉर्मेशन वन कैन रिट्रीव थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। Okay, one of the scenarios I told you. Another very common scenario, and which helped me also, is to know your life purpose, to know your soul purpose. There are many people, especially during the time of Corona, when people started knowing healing a lot, and whole energy of the planet been changing. So what's happening? What's happening is that most of the people now started understanding that they should live a purposeful life. That should be a deep sense of purpose in their life. Okay, so what is that purpose? That information is also kept in the Akashic records, and this is very helpful for the people who want to become healer. I'm saying, like, as one of the scenarios, who want to become healer, who want to help others, who want to access this transformative energy, to bring in this transformative energy into their lives. What are their spiritual gifts? Lot of information one can get through the Akashic records. Okay, and sometimes, let's say, you are on the uh, you require your soul's wisdom. Okay,
So that also one can access through Akashic records. ओके सो मुझे कैसे पता चलेगा कि व्हेन डू आई नीड इट, तो ये है किसके लिए और किसके लिए नहीं? क्या ऐसा भी कुछ है इसमें कि When one needs it is the internal feeling. Okay, वहां पर I am not the right person, but मैं जनरलाइज्ड वे में अगर कहूँ तो हर इंसान को ये तो पता ही होना चाहिए कि इस लाइफ का उसका पर्पस क्या है, इफ यू नो, बट ऑफ कोर्स इफ दे आर विलिंग टू। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये शायद एक ऐसी चीज है जो समझ आ जाए, पता चले, उससे लाइफ के मीनिंग जो है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, एंड यू स्टार्ट लिविंग द सेम लाइफ विद मोर लाइवली वे। ओके, उसके बाद आपने पूछा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए इज आपने। दिस फॉर, मतलब किसके लिए है ये? ओके, लोग ये अगर मैं सेग्रीगेट करूं कैटेगरीज, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए है, लेकिन एक जो प्री रिक्विजिट यहाँ पर चाहिए वो है फेथ। ये एक डेफिनेटली एक प्री रिक्विजिट है जो इन चीजों को समझता हो, जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग हो, जो जानते हो, और वो लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाते हैं जिन्होंने कभी एनर्जी हीलिंग का एक्सपीरियंस किया हो। ओके, बट ये सबके लिए है, चाहे कोई हाउसवाइफ हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई यंगस्टर हो, कोई फ्रेशर हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, चाहे किसी एमएनसी में वीपी हो। दिस इज फॉर एवरीवन एक्चुअली। ओके, वहां पर कोई भी इसका कैटेगराइजेशन नहीं है कि ये हीलर है के लिए है या नॉन हीलर के लिए, या है ऐसा है या वैसा है। द ओनली प्रीरिक्विजिट इज दैट यू कैनॉट यू कैनॉट डाउट योर ओन आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके सो ठीक है, मैं समझ चुका हूँ कि व्हाट इज आकाशिक रीडिंग एंड उसके क्या बेनिफिट्स हैं एंड ऑल, बट स्टिल आई एम कंफ्यूज कि ये होता कैसे, व्हाट इज द प्रोसेस, लाइक कैसे होता है ये? इसका प्रोसेस अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो ये इस तरह से होता है कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बता देती हूँ। ठीक है, हमारे हमारे एक क्लाइंट हैं, वो आए हमारे पास, एंड उनकी फैमिली में अचानक से ही, मतलब पिछले 1 साल से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक उनकी मैरिड लाइफ में, उनके बिजनेस में, उनके फैमिली मेंबर की हेल्थ बहुत सडनली बहुत ड्रॉप होने लगी, लॉट ऑफ थिंग्स। तो हर फैमिली आजकल, लॉट ऑफ एनर्जी हीलर्स, वो गए, वो बहुत सारे हीलर, कुछ 1-2 हीलर्स को उन्होंने कनेक्ट किया, देन वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी गए, कुछ पूजा पाठ भी उन्होंने करवाए। तो सबने उनको ये बताया कि ये आपका पास्ट लाइफ से आ रहा है। ठीक है, एंड तो वो हमें किसी के थ्रू मिले थे, एंड हमने उनको आकाशिक रीडिंग किया, क्योंकि वो बहुत जगह से डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन लेकर आ चुके थे। बट द वन पॉइंट that's good about this person is that he has faith. He understand that it's true, it happens. So what we suggested him कि instead of doing 10 things at multiple place, let's do the akashic reading. तो आपको एक कंसोलिडेटेड आंसर मिलेगा कि क्या है, क्यों ये वो है, और अभी एज अ फर्स्ट एक्शन आपको अभी कौन सा एक्शन लेना है। ठीक है, तो जब हम उनकी आकाशिक रीडिंग करने लगे, तो प्रोसेस में क्या था कि वो वीडियो कॉल पर थे जैसे आप हैं इस वक्त। ओके, एंड उन्होंने मुझे परमिशंस दी एनर्जी स्कैनिंग के लिए, टू एंटर इनटू हिज आकाशिक रिकॉर्ड्स, क्योंकि हम बिना किसी की परमिशन के किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स में नहीं जाते हैं। दैट्स अ वेरी प्रिंसिपल रूल, और वो हर किसी को करना भी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज डेफिनेटली इट इनकर्स अ ह्यूज कर्मा। और कई लोग तो ऐसे हैं बिना जिनकी परमिशन के आप एंटर कर ही नहीं सकते हो, दे आर देमसेल्व्स वेरी पावरफुल। ओके, सो मैं वहां पर उनकी परमिशन से
उस उनके एलिमेंट में एस्ट्रल ट्रैवल के थ्रू हम उनके वो आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं, ठीक है। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी क्या होता है कि यूनिवर्स ने ये जो असाइनमेंट है इसको, इसके लिए कुछ स्पिरिट्स, गाइड्स एंड एंजल्स अलॉट किए होते हैं जो कि इस प्रोसेस में गाइड करते हैं, ठीक है। सो जस्ट थिंक ऑफ इट एज आई टोल्ड यू, थिंक ऑफ इट एज अ ह्यूज लाइब्रेरी, ठीक है। हम इसी लाइब्रेरी में गए, अब मुझे पता है कि मुझे ABC पर्सन के लिए इस डेटा को लाना है, तो वहां पर लाइब्रेरियंस होंगे, लोग होंगे जो हमें गाइड करेंगे कि आप इस तरफ, यहाँ से ये आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब ये सब आपको बड़ा बिजार सा साउंड कर रहा होगा, बड़ा ऐसा सा लग रहा होगा, ठीक है, बट ये एक हमारे लिए एक बहुत नेचुरल सा प्रोसेस है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनर्जी हीलिंग्स की, हम आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ दिस आइडेंटिटी बात कर रहे हैं, हम इस आइडेंटिटी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ला रहे हैं इस आइडेंटिटी से बाहर जाकर। ये बात बहुत मायने रखती है, आप सारी बातों का सार इस एक लाइन में समझ जाओगे कि इस आइडेंटिटी की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम ला रहे हैं इस आइडेंटिटी से बाहर जाकर, क्योंकि जब तक हम ये आइडेंटिटी लेकर बैठे रहेंगे ना, बहुत सारी चीजें नहीं होने वाली, ओके तो ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें एक वीडियो कॉल का ये रहता है, कुछ जो लोग कनेक्टेड होते हैं या फील कर सकते हैं वो उस प्रोसेस के दौरान कई बार फील भी कर सकते हैं, यू नो। आई वुड नॉट से कि उनको एकदम से, अनलेस दे आर यू नो इनटू दिस हीलिंग्स या बहुत वो एनर्जी सेंसिटिव है, तो सारी इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं, लेकिन बट most of the times they could feel something, most of the times they can have a vision, some thought into their mind which we can relate with the reading, and then collectively we tell them that this is the message, this is what I am seeing right now in your akashic records, that's the thing, that is the, you know, this is how this process is. So ये कोई चिट चैट का सेशन नहीं होता है, okay? चिट चैट का सेशन कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, वो काउंसलिंग सेशंस होते हैं, स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशंस होते हैं, राइट। दिस इज अ वेरी यू नो रिजल्ट बेस्ड सेशन बेसिकली, रीडिंग। एंड मैं ये भी यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि इसको हर कोई एनर्जी हीलर नहीं कर सकता है, बिकॉज उन एनर्जी हीलर्स को भी, जैसे यूनिवर्स ने उन स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स को चूज किया, उनको वो काम दिया, ऐसे ही उन स्पिरिट गाइड्स एंजल्स ने उन पर्टिकुलर लोगों को इस प्लैनेट पर चूज किया है जो वहां तक आ सकते हैं, जो वहां तक आएंगे। and I am one of those blessed people, but anybody can do that after a certain, you know, experience, after a certain level of uh, experiencing the depth, ठीक है, वो आप भी कर सकते हो, but through certain practice, through certain experience, है ना, क्योंकि it's a big responsibility, आप किसी के सोल रिकॉर्ड्स में जा रहे हो बेसिकली, राइट। Okay, so one thing I would like to ask कि इसके कुछ डाउनफॉल भी हो सकते हैं कि लेट्स से कोई हीलर अगर किसी के सोल रिकॉर्ड्स में जा रहा है, सो मे बी वहां पे कुछ वो बाय मिस्टेक कुछ गलत भी कर सकते हैं, या कुछ ऐसा भी कुछ होता है, कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह मे बी। सी देखिए, जिन लोगों को एक्चुअली जिनको गलत करना है ना, उनको उनके सोल रिकॉर्ड तक जाए बिना भी कर सकते हैं, करने वाले कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, बाय मिस्टेक। ठीक है। हाँ, अब मैं इस बात को डाउनफॉल नहीं कहूंगी, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है, बट आपने बहुत बहुत ही बोल्ड क्वेश्चन पूछा है, और प्रिसाइसली मैं बोलूं तो कुछ लोग कर सकते हैं, बट अगेन दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन देयर इंटेंशन, वो वहां पर आकर कोई इंफॉर्मेशन लेकर कैसे किसी को, यू नो, मैं खुद अगर बोलूं तो आई met a person in my life whom I considered as my mentor, spiritual mentor. So वो जो साइकोपैथ मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो इस तरह के आपके इंफॉर्मेशन को डेफिनेटली यू नो कर सकते हैं, और मेरे साथ ये हुआ है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये डैमेज एक्सपीरियंस किया है,
और क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं समझती हूँ कि मतलब आई नो दैट यू नो पेन, एंड आई नो दैट कि उस ट्रस्ट लेवल को वन शुड रिटेन। ओके, बाकी इतना मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अगर किसी ने किसी के सोल रिकॉर्ड में घुसकर कुछ जो भी किया, जिस भी इंटेंशन से किया, उसके साइमल्टेनियसली उसके सोल रिकॉर्ड्स में भी एक रिकॉर्ड बन रहा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम्म, And one cannot deny that, one cannot stop that, because that's a universal thing, that's the power of the nature। ठीक है, तो मैं किस इंटेंशन से वहां पर हूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे किसी भी हीलर के रिकॉर्ड्स में भी एक रिकॉर्ड उस वक्त क्रिएट हो रहा है। तो डाउनफॉल भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। एज आई टोल्ड, कुछ लोग होते हैं हमारे पास आते हैं, कहते हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें कहा बहुत अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम होने के लिए मतलब कोई प्रॉब्लम ही चाहिए क्या कि अपने बारे में जानने के लिए? सो समटाइम्स क्यूरियोसिटी अबाउट नोइंग योरसेल्फ इज इनफ टू एक्सेल इन लाइफ। So, but how is it different from astrology, tarot card reading, angel therapy and all? क्योंकि वो सब भी मुझे काफी सिमिलर ही साउंड कर रहा है। सिमिलर साउंड कर रहा है बट सिमिलर है नहीं। अब आपको मान लीजिए कि आप जहां पर भी हैं, अभी आप कहाँ किस लोकेशन पर हैं? दिल्ली में है, ठीक है, गुड़गांव रहता हूँ। गुड़गांव में है। आपको अपनी जगह से मान लीजिए एयरपोर्ट तक जाना है, ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट जाना है। आप कैब से भी जा सकते हो, आप साइकिल से भी जा सकते हो, ठीक है, आप Yes. स्कूटी से भी जा सकते हो, दोस्त से लिफ्ट लेके भी जा सकते हो। जाओगे कैसे भी, डेस्टिनेशन क्या है, आपको वहां पर पहुंचना है, ठीक है। ऐसे ही ये जो सारी चीजें हैं, एंजल थेरेपी है, टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सारे टूल्स हैं आपको एक जगह पे पहुंचाने के लिए। अब आप साइकिल से जाओगे, पसीने भी आएंगे, यू विल बी स्वेटिंग अ लॉट, एंड इट विल बी टायरिंग फॉर यू। और एयरपोर्ट पे साइकिल से पहुंचना थोड़ा कूल भी नहीं लगेगा, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल प्रेफर कार, मे बी योर ओन कार और मे बी बाय ओला, उबर और एनी टैक्सी। तो आप ये समझिए कि ये जो बाकी सारी जो टेक्नोलॉजीज है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल रिकॉर्ड्स, this you might consider as bicycle। And Akashic reading is a very straight and a very focused science। Akashic reading आपको कुछ और ऑफर नहीं कर रहा है। Akashic reading आपको सिर्फ niche based सोल्स रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की वो साइंस है। वेयर एज बाकी जो चीजें हैं वो आपको प्रेडिक्टिव साइंस भी ऑफर करती हैं, वो आपको एबीसी भी ऑफर करती है, वो आपको ये भी वो भी बहुत कुछ ऑफर करते हैं, ठीक है। दोज आर काइंड ऑफ अ डिफरेंट साइंस। वो सिमिलर साउंड इसलिए करता है क्योंकि कोई भी ऐसी चीज जो एनर्जी या इंट्यूशन से जुड़ी हो, वहां पर हम कुछ ना कुछ कर्मा के बारे में जान सकते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। बट अगेन इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द एस्ट्रोलॉजर, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द टैरो रीडर। आप ये नहीं कह सकते कि टैरो कार्ड्स हाथ में आ गए और वन कैन नो द एंटायर अबाउट इट। इट डिपेंड्स लॉट ऑन द इंट्यूशन, डेप्थ ऑफ द पर्सन, कि वो कितना अंदर तक देख सकता है आपके कार्मिक उसमें। लेकिन आकाशिक रीडिंग स्पेसिफिकली उसी ही चीज को पॉइंट करता है जो आपके कर्मा का कुछ ऐसा पार्ट जिसको हील होने की जरूरत है, या जहां से आपको अनटैंगल होने की जरूरत है, ठीक है। तो ये एक फोकस्ड वे है बेसिकली। इधर उधर उधर घूमने से इट्स जस्ट अ स्ट्रेट एंड टू द पॉइंट थिंग। So what are the expectation that one can have from Akashic reading? क्या उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे बिफोर एंड आफ्टर? क्या वो बहुत ही तेजी से उसे कोई कोई चेंजेस दिखेंगे अपनी लाइफ में, या इट्स अ स्लो थिंग? देखो इस यहाँ पर मैं आपका पिछले क्वेश्चंस का रेफरेंस लूंगी। जब आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जानते हो
कुछ आप उससे पूछ कर आते हो, उनसे पूछ कर आते हो, वो आपको कुछ आंसर करते हैं। आप हमेशा मतलब हो सकता है वो आपको कुछ अच्छा बता दें, ठीक है, और हो सकता है कि वो कुछ अच्छा ना बताए। जो बहुत ट्रुथफुल एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, डिपेंड करता है आपकी विलिंगनेस पे, ठीक है। डिपेंड, मेरे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं या मेरे जो, मैं खुद जब कहीं पे जाते थे तो मेरी एक एस्ट्रोलॉजर थी, वो मुझसे पूछती थी सच बताऊं या वैसे बताऊं कि जैसे दूसरे क्लाइंट्स को बताना होता है। तो मैं बोलते थे टेल द ट्रुथ नो मैटर हाउ हार्श इट इज, ठीक है। तो वो आपकी विलिंगनेस पर बहुत डिपेंड करता है, आपकी एक्सपेक्टेशन। लेट्स से कि आप, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे सेम अभी मैंने आपके एक क्लाइंट का एग्जांपल दिया था उनको, तो ही वाज वेरी रेडी टू लिसन कि वो गलत क्या हुआ उनसे, या उनके जो भी उनकी ओवरऑल हिस्ट्री थी, ही वाज वेरी विलिंग टू लिसन दैट, ओके। हम पहली बात वो, राइट, क्योंकि वो आकाशिक रिकॉर्ड आपके कर्मों के हिसाब से क्या बताएगा उसको मैं नहीं बता, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ ना मैं बता सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि वो रिकॉर्ड दिखाएगा कि ये अच्छा या बुरा, इसने ये ओवरऑल ये इशू है, ये किया था, ये एक्सपीरियंस किया था इस सोल ने, ये इस सोल का अनरिजॉल्व है, एंटैंगल्ड है, लॉट ऑफ थिंग्स। तो इट कैन बी एनीथिंग, ओके। तो पर्सन मस्ट बी रेडी फॉर दैट। एक्सपेक्टेशन में आपको वाई का आंसर जरूर मिलता है, आप उस वाई से सेटिस्फाइड हो या नहीं हो, वो आपके फेथ पर डिपेंड करता है, वो आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि हम उसमें अपनी कोई कहानी ऐड करके नहीं दे सकते, क्योंकि वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ, उसका एक रिकॉर्ड आई एम सेइंग कि साइमल्टेनियसली मेरा भी क्रिएट हो रहा है। तो उसमें अननेसेसरी का मसाला या गॉसिप डाल के सिर्फ इसलिए कि आपका मतलब आप वो सुनो जो सुनना चाहते हो के लिए, आई आई कैन नॉट स्पॉइल माई रिकॉर्ड फॉर दैट, ठीक है। आपको वाई का आंसर मिलेगा, अगर आप विलिंग हो आपको सोल पर्पस के आंसर जरूर मिलेंगे, ठीक है। और तीसरी जो अगेन जो लोग एक्सेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को, जो एक्चुअली में यूनिवर्स में एक रूल है, एक देयर इज अ लॉ बेसिकली। जब आप अपनी विलिंगनेस शो करते हो तो यूनिवर्स और अपना एक्शन लेते हो, ओके, तो यूनिवर्स उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। तो किसी ना किसी वे में यूनिवर्स आपको बज करेगा आफ्टर दैट रीडिंग और समथिंग। लेकिन ये मैं नॉन हीलर्स के केस में, बिकॉज आई डोंट नो हाउ they can feel it or not feel it or can understand it, okay. So this particular point is for advanced people. Advanced, I mean those are energy sensitive, और वो किसी तरह की प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं या हीलिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं। देखिए, आप खुद भी आकाशिक रिकॉर्डिंग रीडिंग कर सकते हैं। मैंने आज इस वीडियो में सारा प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि आप करिए, कोई भी आप थेरेपी पे जाइए, आप एंजल थेरेपी पे जाइए, बट यू नीड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड रीच देयर। Whereas Akashic reading for me is go directly, okay। तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, या आपको अगर शॉर्टन करना है इस प्रोसेस को, तो आप डेफिनेटली यू कम टू अस और टू एनीबडी, बुक योर अपॉइंटमेंट एंड गेट इट डन, ओके। लेकिन एक, अब आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास गए, आकाश आप कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो लाइफ में? Yes. ठीक है। अब आप रीडिंग ले आए, उसके बाद आप क्या करते हो? बस सोच के बैठ जाते हो कि जो एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया वही मेरा जीवन है, अब तो कुछ होगा ही नहीं उसके अलावा, ऐसे ही करना है? मोस्टली तो यही किया है। मतलब हाँ, तो जो भी सुना उसके अकॉर्डिंगली अगर कुछ वगैरह जो नॉर्मली इंडियन एस्ट्रोलॉजर क्या कुछ उपाय बता देते हैं कि भैया हर सोमवार को पानी चढ़ा देना शिवलिंग को, वो उपाय हर क्या है? मंगलवार। वो उपाय बेसिकली क्या है? एस्ट्रोलॉजी की साइंस के हिसाब से वो आपको एक सर्टेन एक्शन करने के लिए बोल रहे हैं, टू क्रिएट अ सर्टेन एनर्जी, टू फॉर्म अ सर्टेन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे भी जो लोग आगे जाना चाहते हैं और उस पूरे स्पेक्ट्रम को चेंज करना चाहते हैं, सिनारियो को, तो हम उसके बाद उनको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफर करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी उनको वहां से एग्जैक्टली एंटैंगल होने के लिए।
इट्स अ वेरी डीप रीडिंग, जस्ट लाइक हम उनको तरीका बता देंगे, आकाशिक रीडिंग के दौरान भी हम उनको बता देंगे कि आप ये मेडिटेट कर लीजिए, बट अगेन चॉइस इज देयर्स। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी टैरो की साइंस ये चीज ऑफर नहीं करती है, लेकिन क्योंकि हम इसी सेगमेंट में काम करते हैं तो हम इसके आगे का एक्शन एक हैंड होल्डिंग करके, और सोल की हैंड होल्डिंग करना इज नॉट गेम ऑफ बिगनर्स। ठीक है, और मे बी द पीपल who have been carrying spiritual gifts from their past life, they can do it. ठीक है, तो वहां नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए उनको रेडी होना चाहिए। एंड वन पॉइंट, हु इज दिस फॉर नॉट, ये किसके लिए नहीं है? वो लोग जो अपना फ्यूचर सुन के, अपनी बात सुन के बस हाथ पे हाथ धर के विक्टिम मोड में रहना चाहते हैं, ये उनके लिए नहीं है। यूनिवर्स उनको हेल्प नहीं करता है, और हम भी उनकी किसी तरीके से हेल्प नहीं कर सकते हैं। द पीपल हु वांट्स टू स्टे इन द विक्टिम मोड, वी कैन नॉट हेल्प देम। ओके, क्योंकि उनका भी टाइम खराब होगा, हमारा भी टाइम खराब होगा। ओके, दूसरी बात, जो लोग कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते हैं आगे, ये उनके लिए भी नहीं है, क्योंकि ना तो यूनिवर्स हमें सपोर्ट करेगा उनकी हेल्प करने के लिए, ना उन्हें कोई सपोर्ट मिलेगा। जो हर वक्त तीसरा, जो हर वक्त नेगेटिव क्रिपिंग में रहना चाहते हैं, अरे मेरी लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, नो मैटर हाउ डीपली दैट पेन इज, आई अंडरस्टैंड इट, आई ऑल्सो एक्सपीरियंस द डीपेस्ट ऑफ पेन्स इन माई लाइफ। वट एवर वी डिड, हमको ये समझना होगा कि ये हमारे ही एक्शंस के कारण हुआ है। जो कुछ हमारी सोल ने एक्सपीरियंस किया, जो कुछ हमने क्रिएट किया, ये उसका रिजल्ट है। अब इसको कैसे हैंडल करना है, दैट शुड बी द कंसर्न। ठीक है, और अगर उसी नेगेटिव मोड में रहना है कि अरे ये हो गया, वो हो गया, फलाना ने ये कह दिया, वो कह दिया, ये हो गया, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप किसी ऐसे बंदे को पास जाइए जो 1 घंटा आपको सुन सके। दिस इज नॉट फॉर लाइक आकाशिक रीडिंग्स। ठीक है, क्योंकि आकाशिक रीडिंग में बहुत हायर लेवल ऑफ स्पिरिट गाइड्स, आपकी सोल, आप समझ रहे हो सोल क्या चीज है? जब से आप हुए, जब तक आप रहोगे, और जितनी आप बॉडीज बदलोगे, सब कुछ है वहां पर। आप उस चीज से डील कर रहे हो। इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि आपको जो अपने बारे में नहीं पता होगा ना, वो सब आप वहां से आप पता कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग जो सोचते हैं कि एक ही रात में सब कुछ चेंज हो जाएगा, अरे आपने इतने जन्मों तक रायता बिखेरा, वो एक रात में नहीं समझ सकता। मुझे पता है बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं इंस्टेंट, ये वो, इंस्टेंट वाला पॉइंट आता है, लेकिन उसके लिए एक सर्टेन प्रोसेस भी चाहिए होता है। एक एक जो बच्चा होता है माँ के पेट में, हम सबको पता है, आया है, आएगा, सबको पता है, लेकिन वो अपने 9 महीने लेता है ना, वो अपने 9 महीने लेता है। दैट्स अ नेचर, दैट्स अ प्रोसेस। ऐसा थोड़ी है कि हम बच्चे को खिलाना छोड़ देंगे या माँ के मुंह में कुछ डालना छोड़ देंगे। We still do that because it's a process. This is how it will come out. या फिर हम माँ को बोलेंगे कि आ ही जाएगा अपने आप 9 महीने बाद, हम उसके लिए कोई हॉस्पिटल बुक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, या पुराने तो देयर इज अ सर्टेन प्रोसेस ऑफ डूइंग द थिंग्स। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको पहले ये समझना होगा कि आप एक्शन लेने को तैयार हो या नहीं हो। दैट्स द होल स्टोरी। आप खुद कीजिए, आप हमारे पास आइए, क्योंकि हमारा जॉब है ट्रांसफॉर्म टू सक्सीड, सिंपल, राइट? तो इट्स अ डीप जर्नी। So, what is the involvement of the person that is getting the reading? उसको क्या करना होता है उस टाइम पे, या फिर उसको बस आइडली बैठना है, मेडिटेट करना है, या रीडिंग उस होने के टाइम बाद पे भी अगर एज उसको आई कुछ करना है? स्टार्टेड, एक नहीं, एक्चुअली एट दैट टाइम उनको एक बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछना है हमसे। उनकी जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है ना, वो मैटर करती है आंसर पे। लेट्स से वो पूछना चाहते थे कि मेरे इस जन्म का पर्पस क्या है। अब वो पूछ रहे हैं कि पत्नी के साथ रिश्ता ऐसा क्यों है। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो क्वेश्चन हैज टू बी करेक्ट बिकॉज द आंसर विल बी बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, एंड जनरली इस एक रीडिंग में
मतलब ये जो एक सेशन होता है ये हमारा लाइक 40 मिनट्स अप्रॉक्स होता है, 40 to 50 मिनट्स होता है। बहुत ही टाइम बेस्ड होता है क्योंकि इट्स इंटेंस एनर्जी, और हमें भी उस टू द पॉइंट, मतलब इट्स अ रिजल्ट बेस्ड सेशन कि हमने ये बताया। ये पीएलआर नहीं है, हम आपको किसी पीएलआर में आपकी किसी पास्ट लाइफ की जर्नी पे लेके नहीं जा रहे, ठीक है। इट्स लाइक कि हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट ने आपका चार्ट देखते हैं, वो कुछ बताते हैं, ऐसे ही हमारे सामने आपका सोल का चार्ट होता है, उसको देखकर हम आपको आपकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब जब एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ बता रहे हैं तो ऐसे तो आपको कुछ करना नहीं होता, वहां बस फेथ से बैठना होता है, राइट। या और कुछ करना उस वक्त कुछ नहीं करना, आपको आपको बस वहां फेथ से बैठना है। वो आपका चार्ट देख रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं। सेम हम आपका सोल के पूरे रिकॉर्ड्स एंड चार्ट देख रहे हो, वो हम आपको बता रहे हैं। ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि कुछ एनर्जी सेंसिटिव लोग हैं या जो समझते हैं, तो उनको कुछ फीलिंग्स उनको उनको होते हैं, मतलब एक्सपीरियंसेस होते हैं। दैट्स गुड। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स बेसिकली। सो सिंपल, इट्स अ रीडिंग। आई थिंक हमने काफी डिस्कस कर लिया आकाशिक रीडिंग के बारे में। आई गॉट टू नो अ लॉट। हमने सारे बेनिफिट्स कवर करे, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, व्हाट्स द प्रोसेस लाइक एंड ऑल। सो ओके, आई थिंक लेट्स रैप अप। इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन। या फिर कुछ ऑलराइट, और ऐड करना है, सो यू कैन ऐड। बस मुझे ये जो वीडियो है, आई थिंक I will be using it to forward it to some people who knows about Akashic reading, और वो उनको बहुत हेल्प करेगा समझने के लिए कि ये एक्चुअली में क्या है, ठीक है। फिर मैं यही बोल कि जब आकाशिक रीडिंग के बाद जो लोगों को सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, उसके लिए भी उसके बेस पे हो सकता है दे आर कैपेबल एनफ टू टेक देयर एक्शंस, ठीक है। हम कुछ रेमेडीज या कुछ चीजें उनको बताएंगे, बट अगर वो सच में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए देन वी विल डिस्कस ऑन दैट, वी विल बेस्ड ऑन दैट। एंड मैं एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ, नथिंग कम्स फॉर फ्री, स्पेशली इन स्पिरिचुअलिटी। नथिंग कम्स फॉर फ्री। लोगों को लगता है कि जैसे स्पिरिचुअल वर्ड सुना कि कोई बाबा जी होंगे, कोई आप मुझे बताइए, आप बाबा जी बनना चाहते हैं? डू यू वांट टू बिकम अ बाबा जी? अगर आप बाबा जी बनना नहीं चाहते, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जैसे ही स्पिरिचुअल वर्ड आया तो वन थिंग शुड सर्व इट फॉर फ्री? आई एम एन इंजीनियर, आई हैव डिवोटेड माय होल लाइफ इनटू दिस, इट्स माय वर्क। exchange of energy is very important, it is extremely important। अब मंदिर में भगवान से कुछ मांगने जाते हैं ना, ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि उनको भी बोलकर आता है कि 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। इट्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये बात अलग है, भगवान से मांगा 1 करोड़, आपने 11 रुपए दिए, लेकिन यूनिवर्स निकाल लेता है। यूनिवर्स की कैलकुलेशन इज द बेस्ट अकाउंटेंट, तो वो सब निकाल लेता है। तो बैलेंसिंग द एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये फ्री में होगा, फ्री में होता है, ये आपके लिए भी नहीं है। ये फ्री में हो ही नहीं सकता है। अगर कोई फ्री में कर रहा है तो मैं ऑनलाइन खुलकर बोलती हूँ कि आपका भी कर्म बिगड़ेगा, सामने वाले का भी, जो ये कर रहा है उनका भी गड़बड़ हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, अनलेस देयर इज अ पेंडिंग कर्मा विद अ हीलिंग। मेरे सामने ऐसे भी लोग आते हैं जिनका आई एम लाइक पास्ट लाइफ से मैं अपने रिकॉर्ड में ऐसा लेकर आई हूँ कि मुझे उनको देना ही है। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, आपका मतलब वो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, पूरा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि आप बैलेंसिंग की बात कर रहे हो यहाँ पे, ऑलरेडी बैलेंस बिगड़ा हुआ है, तभी हम ये बात कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर आप एक और टॉपिंग ले आओ अनबैलेंसिंग की, तो क्या रायता फैलेगा, क्या खिचड़ी बनेगी, मतलब कोई एंड नहीं है ना उसका तो। ओके, सो दिस इज लाइक फॉर गो गेटर्स पीपल, देयर आर एम्पल ऑफ पॉसिबिलिटीज जो कोई और मोडालिटी और टेक्निक्स लाइफ में ऑफर नहीं कर सकती। It's like very in depth, very interesting and मजेदार, fun loving, ठीक है, and miraculous। बट आना पड़ेगा वहां पे, स्टेप करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। So that's all from my side, Akash.
Okay, thank you. So thank you so much.